ऑलराइट, सो हमारी ये 4 फेजेस हैं. अब इन 4 फेजेस को मैं सीजन्स में देखती हूँ, राइट? और केवल मैं नहीं देखती हूँ, आयुर्वेदा में मैक्सिमम लोग इसको ऐसे ही देखते हैं. हम इसको बोलते हैं इट स्टार्ट्स विद अ विंटर, गोज टू अ स्प्रिंग, देन कम्स आवर समर और लास्ट में ऑटम. थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ. ऑलराइट, विंटर फेज कौन सा होता है? जब हमें पीरियड चल रहा होता है, राइट? The one which we call as menstrual phase, that can also be said it is a winter phase. That is the phase we want to be cozy. We want to just lie down on our bed. We don't want to do anything. Most of us want to hug something warm, right? We want a heating pad or we want a chai ka cup, right? We want something cozy around us, right? So we want that warmth. एंड इज दैट वार्मथ ओनली फिजिकल? क्या हमें वो केवल एक फिजिकल वार्मथ चाहिए? नो, हमें उस समय सबसे ज़्यादा लोगों की अटेंशन भी रिक्वायर्ड होती है. वी वॉन्ट वार्मथ ऑफ द पीपल अराउंड अस. वी वॉन्ट वार्मथ ऑफ क्लोज वंस अराउंड अस, राइट? अभी उस समय हस्बैंड थोड़ी सी पैम्परिंग कर दे तो बस सब कुछ भूल जाएंगे हम, राइट? Little pampering and we are good to go, right? So we are that, cute little puppies type हम बन जाते हैं. We are looking कि यार कोई तो आके प्यार से बात कर ले. Someone talk to us nicely. Someone gives us a warm hug. Someone please make us feel that we are cared, right? So this is what I called as winter phase. That is our menstrual phase. So the next time you are coming up with your periods, please don't feel disheartened. This is a phase where you need lot of warmth. I completely understand that. It is the phase where you need maximum care. I completely understand that. And I also understand we all are planning for pregnancy. तो एक एक पीरियड आना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है. So please अपने आप को उस समय calm down करो. And I know it's not easy to calm down. So don't push yourself also. ठीक है? So that is a phase we need to calm down. Now let me tell you a mantra for that phase. हम सारे मंत्रा लास्ट में रिपीट करेंगे, बट मैं आपको एक एक मंत्रा बताती जाती हूँ. फर्स्ट मंत्रा जब विंटर फेज होता है, व्हेन यू आर इन पीरियड्स, जो आप रिपीटेडली बोल सकते हो, दैट इज ओम शांति शांति शांति. Okay, so this is a mantra which you are supposed to say when you are going through menstrual phase. Every menstrual phase is going to give you a hope for another follicular phase, ovulation phase and a pregnancy. So calm yourself down. Okay, try to calm yourself down. I know it's difficult. I completely understand it's difficult, but मैं बस आपको एक guidance दे सकती हूँ, right? So next phase is follicular phase. What is a follicular phase? उसमें हमारी ओवरीज डिसाइड करती हैं इस महीने कौन काम करेगा. दिस मंथ विच ओवरी इज गोइंग टू रिलीज द एग. सो दिस इज नोन एज द फॉलिकुलर फेज. दिस इज राइट आफ्टर योर पीरियड्स गेट ओवर. दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज द स्प्रिंग फेज. स्प्रिंग मतलब फ्लावरी फेज. यू फील द बेस्ट. You feel like a boss lady. You feel like I'm the most beautiful person at this time. This is the phase when you want to groom yourself, when you feel like कि यार ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, स्पा भी कर लूँ, हेयर केयर भी कर लूँ, है ना? मैम ने बोला फीट सोकिंग भी कर लेती हूँ. So this is the phase where you feel like everything is perfect, everything is aligned, everything looks absolutely beautiful, right? So this is called spring phase or the follicular phase. ये आपके पीरियड साइकिल खत्म होने के बाद से आपके ओव्यूलेशन स्टार्ट होने के बीच का फेज है, राइट? इस समय यू डोंट वांट एनीवन सपोर्ट. यू आर नॉट आस्किंग फॉर एनीवन सपोर्ट एट दिस टाइम. यू आर ऑन योर ओन. यू एक्ट लाइक एन इंडिपेंडेंट वुमेन. आप सब ऐसे हो जाते हो कि यार इस समय तो मैं सब कर दूंगी. क्लीनिंग डन, कुकिंग डन, बॉस ने कोई भी डेडलाइन दी है, आई विल क्लियर इट ऑफ. एनी पेंडिंग वर्क, सब डन 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 डन. ठीक है? सो दैट इज आवर फॉलिकुलर फेज, राइट? पीरियड खत्म होने के बाद यू ऑल्सो फील लाइक आई कैन डांस. नाउ आई एम रिलैक्स्ड, राइट? सो दिस इज दैट फेज. ओके, नाउ व्हाट इज द मंत्रा फॉर दिस फेज? मंत्रा इज ओम ह्रीम
नमः. I will repeat all the mantras at the end, so don't do the practice right now, but whenever I do this, मेरी आदत हो चुकी है मैं आँख बंद करके ही करती हूँ. Okay, so we do this mantra which is Om Hrim Namaha. Okay, this is a phase when we are giving the maximum power to ourselves. We are trying to give ourselves that energy boost. हाँ, इस समय हम बिल्कुल सब कुछ करने लायक होते हैं. Next comes the ovulation phase. Ovulation phase is also known as the summer phase. Summer season, right? इस समय आपका जो ईस्ट्रोजन है ना और जो आपका LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये इट्स ओके अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, आई एम जस्ट टेलिंग यू दीज आर द 2 हार्मोन्स. ईस्ट्रोजन और LH ये बिल्कुल पीक पे होते हैं, टॉप पे होते हैं, और ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी सेक्सुअल एबिलिटीज, हमारी लिबिडो उसको बढ़ाते हैं. They make us feel that we need this time for our partner. We really need to be close to our partner. And I know a lot of you don't feel like this during your ovulation. So this is what we are supposed to understand. ओव्यूलेशन के टाइम पे आइडियली होना ये चाहिए कि आपका ईस्ट्रोजन सबसे हाई होता है, आपका LH सबसे हाई होता है. दिस इज द टाइम दैट यू वांट टू हैव योर पार्टनर अराउंड यू, यू वांट टू स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन. बट बहुत सारे लोग जो मेरे से इस समय ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दे डोंट फील लाइक डूइंग दैट बिकॉज आप लोगों को जो डिजीजेस हैं, राइट, यस, आप लोगों को जो भी डिजीजेस हैं, बीट अ फाइब्रॉइड, बीट एन एंडोमेट्रियोसिस, बीट PCOS, ये आपका ईस्ट्रोजन विच इज द फीमेल हार्मोन उसको प्रॉपरली रिलीज नहीं होने देता है. दिस इज द रीजन. सो डोंट फील गिल्टी अबाउट इट. स्टॉप पनिशिंग योरसेल्फ. यार ये टाइम था व्हेन आई हैड टू प्लान एंड यू नो आई एम नॉट इन दैट मूड. व्हाट टू डू? डॉक्टर पूजा ने बोला है ओव्यूलेशन ट्रैकिंग चल रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है. दिस इज ओके बिकॉज ये आपके हाथ में नहीं है. ये बीमारी भी आपने नहीं मांगी थी. यू डिडंट कॉल कि आई यू नो गॉड मेक मी सिक, I don't want this, right? You didn't ask for it. So if something has happened, please understand this is also part of it. Okay, now after this session, you know, after telling you all this, I will tell you what you can do also. So don't worry, I'm going to tell you the solutions also along with this. So what I was telling, this is the phase when ovulation take place. Most of you would have your ovulation from your 9th to the 14th or 15th day, right? But it can vary. इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. ये अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है. किसी किसी का ओव्यूलेशन 4th 5th डे भी स्टार्ट हो जाता है. दैट इज उनका जो फॉलिकुलर फेज होता है वो बहुत छोटा होता है. ओके, हार्डली 1 या 2 डेज का, 24 आवर्स टू 12 आवर्स का होता है, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट उनका ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, राइट. सो ओव्यूलेशन इज अ टाइम जो कि सबका डिफरेंट होता है. जस्ट लाइक आई सेड, मेंस्ट्रुएशन भी एक ऐसा टाइम है जो सबका डिफरेंट होता है. किसी को 2 दिन होता है तो किसी को 7 दिन होता है. दैट इज ऑल्सो ओके, करेक्ट. सो ओव्यूलेशन टाइम इज दैट मिड साइकिल टाइम, एंड आइडियली मिड साइकिल होना चाहिए, पर नहीं हो रहा तो वी ट्रैक दैट. हाउ डू वी ट्रैक दैट? विद आवर ओव्यूलेशन किट्स वी ट्रैक दैट, राइट. तो आपकी सबकी ओव्यूलेशन किट पे, किसी किसी की ओव्यूलेशन किट पे व्हाट इज रिटन? LH. हैव यू सीन दैट? साइड में टॉप पे on one side it is written LH, correct? Okay, so let's talk about that LH today. So that LH is luteinizing hormone. This is exactly, so where did we hear this word luteinizing? Luteal phase, that was our last phase. हम उस फेज में तब जाते हैं अगर हमारा ओव्यूलेशन के टाइम पे प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से पॉजिटिव नहीं होता. बट ओव्यूलेशन के टाइम पे LH, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सबसे टॉप पे होता है. ओके, सो ओव्यूलेशन, LH ऑन द टॉप, एग रिलीज हो रहा है. एग रिलीज होके कहाँ जाता है? फ्रॉम द ओवरीज टू द फेलोपियन ट्यूब, करेक्ट. सो दिस इज द टाइम वेयर वी आर expecting someone close to us. We can be extremely in that zone of attraction, love, infatuation. This is the phase where we want to stop doing certain things और हम कुछ चीज़ों को लेके बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट. सो दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन पीरियड, राइट, एंड व्हाट आई कॉल इट एज समर पीरियड. इसके अंदर भी हमें एक मंत्रा बोलना होता है. दैट मंत्रा इज ओम श्रीम नमः.
सो द मंत्रा फॉर दिस फेज इज ओम श्रीम नमः. आगे मैं आपको जब कराऊंगी तो पूरा बताऊंगी, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्टेज, ये तो सबको पता होता है, ल्यूटियल फेज जो है उसको हम ऑटम बोलते हैं और उसको कॉमनली एक और टर्म दी जाती है जिसके ऊपर हमारा बहुत मजाक बनाया जाता है, दैट इज PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, राइट. या शी इज हैविंग PMS, शी इज गोइंग थ्रू PMS. मैं तो खुद ही बोल देती हूँ, अगर मेरे यहाँ कोई वन ऑफ माई पीपल इन माई क्लिनिक दे आर नॉट इन देयर ग्रेट मूड और दे आर लो और दे आर क्रैंकी या ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मैंने डांटा तो मुझे ही डांट लग गई उनसे, तो ऐसे तुम्हें PMS हो रहा है क्या आज? Are you in your PMS, right? So what is PMS? So how many of you know about PMS? या सुना है यार तेरे को PMS चल रहा है क्या? Why are you so overreacting, right? Simple. अब तो मूवीज में बहुत कॉमनली यूज होता है दिस वर्ड. She is PMSing, right? So PMS. This is right before your periods. और यही PMS आगे चल के प्रेगनेंसी में बनते हैं मूड स्विंग्स. अगर PMS उतने ही टाइम के रहे दैट इज 4 to 5 days और उसके बाद पीरियड्स आए तो पीरियड्स आते ही योर मूड्स आर फाइन, राइट. बट अगर हमारे उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाता है तो यही मूड स्विंग्स आगे खिंचते चले जाते हैं, राइट. वी फील लाइक यार अभी भी मैं लो हूँ, अब तो बेबी भी आ रहा है, पता नहीं मैं इतनी एक्साइटेड क्यों नहीं फील कर रही हूँ. उस दिन बहुत एक्साइटेड थी, आज अब मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है. छोटी छोटी बातों को लेके स्ट्रेस होना, क्या चीज़ कैसे हैंडल होगी, क्या चीज़ कैसे नहीं हैंडल होगी. मैं इस समय पे सबको अपना नंबर भी दे देती हूँ, जितने भी मेरे प्रेग्नेंट केसेस होते हैं मैं कहती हूँ भैया मेरा ही नंबर रख लो, यू नीड एक्स्ट्रा केयर एंड एक्स्ट्रा लव एंड एक्स्ट्रा अटेंशन राइट नाउ. सो PMS कंटिन्यूज एज मूड स्विंग्स इन योर प्रेगनेंसी, करेक्ट. सो वो एक फेज आगे तक निकलता है. नाउ इस समय हमें क्या चाहिए? वी नीड टू काम डाउन, वी नीड टू रिलैक्स, क्योंकि या तो प्रेगनेंसी होगी या मेंस्ट्रुएशन आएगा. दोनों ही चीज़ों के लिए हमें अब कूल डाउन होना पड़ेगा. वी वेंट इनटू अ वेरी एक्साइटेड जोन जब हमारा ओव्यूलेशन हुआ, अब थोड़ा थोड़ा काम डाउन होना पड़ेगा. सो विच मंत्रा वी से एट दिस टाइम? द मंत्रा वी से एट दिस टाइम इज ओम चंद्राय नमः. सो एवरीवन नोज व्हाट इज चंद्राय. चंद्राय इज मून, राइट. तो हम मून को कॉल ऑफ करते हैं, मून को कॉल करते हैं कि हमें काम डाउन करो. Either we are going towards pregnancy or we are going to go towards our menstruation. Both the phase, I want to calm down. I don't want to be heated in my emotions right now. ठीक है? Alright, so let's go into something which needs a little class. I started doing this last year itself. A lot of you are connected with me from last 1 year. So what it is, I send seed cycling. So right now all of you are getting Gond Katira and Chia seeds. Am I correct? So do a thumbs up if everyone is getting their Gond Katira and Chia seeds, right? Okay. Now, next what is it? As soon as we come into the winter phase, that is from September onwards, the cooling environment starts in most of the region of India. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में अब धीरे 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 करके, क्योंकि मानसून भी जाने लग जाता है, एक ठंडक का मौसम आ जाता है, राइट. सो दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग सीड साइक्लिंग. दैट इज द डिफरेंट सीड्स. सो मेनी ऑफ यू गॉट सीड साइक्लिंग व्हेन यू स्टार्टेड विद मी, बट बीच में फिर हमने गोंद कतीरा एंड चिया सीड स्टार्ट किया था बिकॉज समर सीजन आ गया था, राइट. अब मैं दोबारा से आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिस्पैचिंग योर सीड साइक्लिंग्स टू यू इन योर नेक्स्ट फॉलो अप व्हेनेवर इज कमिंग, राइट. तो आई वॉन्ट टू गिव दिस सेशन टू एक्सप्लेन यू सीड साइक्लिंग क्यों करनी है, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, हाउ मच इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ओके, नाउ सीड साइक्लिंग 2 फेजेस में होती है. फेज 1, फेज 2. फेज 1 कौन सा होता है? ओव्यूलेशन से पहले का फेज इज कॉल्ड फेज 1 एंड ओव्यूलेशन और उसके बाद का फेज इज नोन एज फेज 2. ओके, फेज 2 में हम जो जो देते हैं वो आप प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू कर सकते हैं सेफली, बट फेज 1 में जो हम देते हैं वो फेज 2 में प्रेगनेंसी के 2nd या 3rd मंथ के बाद ही कंटिन्यू करना चाहिए. ओके, सो लेट्स फर्स्ट डू दिस थिंग. फेज 1 इज फ्रॉम डे 1 टू डे 40, माने हमारा ऑलमोस्ट ओव्यूलेशन का ना मिड होता है, ऐसे मान के चलो. एंड देन फ्रॉम योर ओव्यूलेशन मिड टाइम टिल योर ल्यूटियल फेज एंड, राइट, दैट इज द टाइम आपका फेज 2 स्टार्ट होता है. तो आपका जिस दिन आज पीरियड स्टार्ट हुआ है, द डे यू स्टार्टेड विद योर पीरियड, डे 1, यू कैन स्टार्ट द फेज 1 सीड साइक्लिंग, करेक्ट.
एंड जिस दिन हम ये कहते हैं कि टुडे यू कैन स्टॉप चेकिंग योर ओव्यूलेशन और टुडे योर ओव्यूलेशन हैज बिकम लिटिल लाइटर, दैट डे बिना हमसे पूछे भी, वैसे वी विल गाइड यू ऑन योर ग्रुप्स, बिना हमसे पूछे भी आप फेज 2 स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ फेज 1 में हम क्या लेते हैं? फ्लैक्स सीड्स एंड पंपकिन सीड्स. फेज 2 में हम क्या लेते हैं? सेसमी सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स. इनके पीछे ना लॉजिक है. अब मैंने आपको सारे मेंस्ट्रुअल फेजेस बता दिए हैं, तो ये लॉजिक समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. फ्लैक्स सीड्स क्या करता है? फ्लैक्स सीड्स और जो हमारे पंपकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं वो हमारा ईस्ट्रोजन को बैलेंस करते हैं. ईस्ट्रोजन इज द फीमेल हार्मोन, राइट, जो हमें फेज 1 में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड था. तो फ्लैक्स सीड हमारा ईस्ट्रोजन बढ़ाता है एंड हमारा जो पंपकिन सीड्स होते हैं, राइट, फ्लैक्स सीड्स एंड पंपकिन सीड्स का हम कॉम्बिनेशन करते हैं. तो फ्लैक्स सीड हमारा ईस्ट्रोजन बढ़ाता है, पंपकिन सीड्स हमारा एग का ग्रोथ बढ़ाता है. इट वर्क्स अपॉन आवर एग ग्रोथ. सो दैट इज व्हाट वी नीड इन फेज 1. एम आई करेक्ट एवरीवन? यू आर गेटिंग माय पॉइंट नाउ? So why you need to have your flaxseed and pumpkin seed in phase 1? Flaxseed ups your estrogen, pumpkin seed helps in your egg maturation. ये हमें phase 1 में ही चाहिए, करेक्ट. सो हम लोग phase 1 में फ्लैक्सीड और pumpkin seed ही लेंगे. अब उसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं. मैं आपको पाउडर फॉर्म में भेजती हूँ, आप उसी पाउडर को लेके सिंपली मिक्स करके विद योर कर्ड, मे बी विद योर चपाती डो, मे बी विद सिंपल ल्यूकवार्म वाटर, आप ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हो. You can make laddus of this. You can add little bit of spices into it and have it. Anyways, it's fine. So phase 1, flax seeds and pumpkin seeds for my estrogen and egg maturation. Correct? Phase 2. Phase 2 में हम क्या use कर रहे हैं? Sesame seed and sunflower seeds. Now, what is the function of sesame seeds? Sesame is what? Til. Very Indianized thing, right? इंडियनाइज थिंग होती है, ठीक है. सो हम आते हैं सेसमे सीड पे. सेसमे सीड और सनफ्लावर सीड. अभी हमने ईस्ट्रोजन के बारे में बात करी थी, जिस पे कौन काम कर रहा था? फ्लैक्स सीड्स. प्रोजेस्ट्रॉन विच इज ऑल्सो दी प्रेगनेंसी हार्मोन. पी से प्रोजेस्ट्रॉन, पी से प्रेगनेंसी. सो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को बढ़ाने के लिए मेरे को सनफ्लावर सीड्स चाहिए. ओके, सो प्रोजेस्ट्रॉन के लिए सनफ्लावर सीड्स चाहिए. और ये जो सेसमे सीड्स हैं, दैट इज आवर तिल, ये हमारे पीएमएस को कम करता है. हमारा प्री मेंस्ट्रुअल ब्लोटिंग, पेट जो हमें फूला फूला लगता है, हाथ पैरों में स्वेलिंग लगती है, उसको कम करता है. ओके, सो फेज 2 इज ऑल अबाउट सेसमी सीड एंड पंपकिन सीड्स. Pumpkin seeds for upping, sunflower seeds. Why no one is interrupting me? Okay, sesame seeds and sunflower seed. So sunflower seeds मेरा प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ाता है, sesame seed मेरा PMS को कम करता है. All right. So what are we going to have? We are going to have 4 seeds with us, right? First is flax seed, second is sunflower seeds, third is sesame seeds and fourth is pumpkin seeds. तो ये सारी सीड्स हमारे पास होने चाहिए. आई हैव टोल्ड यू द फेजेस ऑल्सो. आई विल बी सेंडिंग यू द पैकेट्स ऑफ सीड्स. Till that time, if you have it with you, you can also consume it. But if you want to wait, you wait for the next follow-up and I will send your medications. Along with that, I will also send your seed cyclings to you. Okay? There is no big rocket science behind it. I know most of my patients are working ladies. आप लोगों के लिए सीड साइक्लिंग कंज्यूम करना मुश्किल हो जाता है. सो आई एम सेंडिंग इट फ्रॉम माई साइड. If you want to have it from your locally sourced areas, you can have it from that also. But now you know what is the benefit of these 4 seeds. So it's easier for you to start consuming them. Right? All right. So I think today's class, what I wanted to show or what I wanted to teach, what I wanted to inform was all about menstrual cycle, all 4 phases, how to understand your own body about it, how to make yourself feel better about yourself, and about seed cycling. This is exactly what I wanted to do in this class. This is our last class of basic Garb Sanskar sessions. After this, we will be going for the advanced sessions. So, we will do this. Everyone knows this. We intertwinkle our fingers. We take them to our womb. Wonderful, everyone. Great. So I will be doing 3 rounds of all the 4 sessions, all the 4 phases mantras. You have to do it individually.
ईच फेज ईच मंत्रा. सो पहले हम लोग मेंस्ट्रुअल टाइम के मंत्रा का चैंटिंग कर रहे हैं. जिसका मेंस्ट्रुअल टाइम चल रहा है वो इसको बहुत अच्छे से कर सकता है, जिसका नहीं चल रहा वो सुन सकता है. ओके, सो फॉर द मेंस्ट्रुअल फेज, शांति शांति शांति. टेक अ डीप ब्रेथ. शांति शांति शांति. टेक अ डीप ब्रेथ. शांति शांति शांति. Don't open your eyes. We will do the follicular phase mantras now. Take a deep breath. Hreem Namaha. Take a deep breath. Hreem Namaha. Take a deep breath. Hreem Namaha. Next we are doing ovulation phase mantras. Take a deep breath everyone. Shreem Namaha. Take a deep breath. Shreem Namaha. Take a deep breath. Shreem Namaha. We are now starting with the luteal phase. So everyone take a deep breath. Om Chandraya Namaha. Take a deep breath. Om Chandraya Namaha. Take a deep breath. Om Chandraya Namaha. Take one more deep breath. Rub your hands. Quickly everyone. Put it on your eyes. Place it on your cheeks. अपनी cheeks तक लेकर आइए. And slowly open your eyes. Okay, I have written something for every one of you. Please listen to this. मैंने कल रात को ये लिखा था because I feel like you all need to listen this from me. So, your cycle is not a punishment. It's a rhythm. It's your womb's own song. With each seed, each mantra, each smile, you are tuning this rhythm. Preparing not just for your pregnancy, but for a healthier, happier you. I just wanted to say this to every one of you who are right now planning with me. Don't get disheartened, people. This is going to benefit you a lot. Okay? And I am there with all of you. किसी को कभी भी ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, please talk to me. Okay? Don't feel I am going to leave any one of you. We are going to have more happy news coming up.
just stay connected. Okay, now anyone who wants to ask me the questions can ask, other people can leave the classes, and it's okay because I think it's already time, it's 11 o'clock. So people who want to leave the class, they can leave the class, and the people who want to ask me question can switch on your mics and start me question. Thank you Pyali. हेलो मैम। Yes, हाँ टोपे please tell. मैम ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना मतलब रूटीन फॉलो करके, मतलब पहले जो रूटीन में था वो सब अच्छा से कंट्रोल करके, क्लीन डाइट और प्लस मेडिटेशन और पानी भी मिनिमम सब करने के बाद जब नहीं होता है, तब दवाई खा के सब होने के बाद जब नहीं होता तब ऐसा लग जाता है कि नहीं होगा क्या, ऐसा फील होता है मतलब I know. मैम। तो वो मतलब बहुत खराब लगता है मुझे। Right. How many you can feel what Tope is saying? बस आप अपना thumbs up कर दो because I know most of you are feeling that. Right? Tope ने I think आप सबके emotions बोल दिए हैं एक साथ. Right? I know. See, मैं टोपे इसके लिए यही कहूँगी, I myself started these classes very late for all of you. Once you start doing Garb Sanskar along with the medications, along with the medicines, when you start doing Garb Sanskar, ये जितना let down आप feel करते हो ना, वो let down feel करना आपका कम हो जाता है. One thing. Second, every one of you understand this thing. You are not going any way down the lane. आप सब लोग इस समय towards something better जा रहे हो. Tope, I know you. You are doing amazing. Tope is one of our patients जो कि I think day one से she is following us 100%. 100%. If I have said her इस time पे ये करना है, she would do that. Right? So उसका ये बोलना बनता है, and I think she is saying every one of your emotions. So this is exactly जब हम एक community में जुड़ते हैं, we talk like this, we work on our emotions like this, we can feel it कि यार ये हो जाएगा. Just keep on doing this, and wherever there would be blocks, every single time wherever I feel there is a block or wherever you feel there is a block, connect. We will talk, we will discuss, we will move ahead. अपने आप को डीमोटिवेट होने से ही बस रोको. टाइम कहीं नहीं जा रहा है, आप सबके पास बहुत टाइम है. So don't worry. None of you is going losing your time right now. So just hold on to this. You will improve, and I think I will start doing this. More positive pregnancy news on this group will motivate others also and make them feel more confident also. Right? चलो संगीता, आई नो संगीता को बहुत फ़ायदा हुआ है. सो संगीता इज़ वन ऑफ आर पॉजिटिव प्रेगनेंसी केस टुडे हु जस्ट नाउ गॉट हर रिपोर्ट्स. सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द साइन दैट दिस इज़ वर्किंग फॉर अस. एंड आई नो ये थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ माई ओन some engagements. I think most of you appreciate that. Most of you understand that. Now when we are going ahead with this, I think we are just going to make an amazing community where we are going to achieve a common goal all together. Right? Anyone else? Gayatri, I think you want to ask something. मैम वन क्वेश्चन है मैम. हाँ सोनी प्लीज बताइए. मैम मैं ये कह रही थी जो आपने 4 फेजेस बताए हैं, इनमें जो भी इनके अकॉर्डिंग हमें जो भी खाना है तो मैम उसका आप एक चार्ट अवेलेबल करा दीजिए. कई बार कंफ्यूजन हो जाता है. नहीं फेजेस के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा डाइटरी चेंजेस कुछ नहीं करने होते हैं. द ओनली थिंग इज कि आपको ये 4 सीड्स को प्रॉपरली खाना है. फेजेस के अकॉर्डिंग आप नॉर्मल जो भी आप अपना डाइट फॉलो कर रहे हैं, लाइक सोनी यू आर ऑल्सो हैविंग डायबिटीज राइट, आपका अलग बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो हमने उसके बेसिस पे आपको एक डाइट दिया है, नॉट जस्ट फॉर योर यू नो फीमेल कंप्लेंट्स. सो लाइक यू हैव सर्टेन इशूज विद योर ईयर ऑल्सो राइट, आपको बीच बीच में घबराहट भी होती है करेक्ट. सो हमने उसके बेसिस पे आपको जो डाइट चार्ट दिया आप उसी को फॉलो करो. 1 बट फेजेस के अकॉर्डिंग आप बस सीड साइकिलिंग प्रॉपर करते रहना. ठीक है. हाँ जी हाँ विराज प्लीज. मतलब जब पीरियड आने को होता है तभी सीड्स कंटिन्यू करने से ऐसे बोलते हैं ना, वो गर्म चीज है वो खाने से पीरियड्स आ जाता है. हाँ तो ये मैं प्लीज ये मैं बात करना चाहूंगी, ये बात मैं जरूर करना चाहूंगी. ये आई थिंक निर्मला जी का भी सेम क्वेश्चन था कि कुछ लोग कहते हैं कि सेसमे सीड्स दैट इज तिल का सीड्स उस समय नहीं कंटिन्यू करना है. हाँ प्लीज
We are here talking about the quantity also. How much I am asking you to consume? 1 teaspoon daily. That means half teaspoon of tilka seeds and half teaspoons of sunflowers ka seed. How much it's going to consume? मतलब how much it's going to produce energy or whatever heat in your body? No, not that much. Rather than that, अगर आप इसी को क्वांटिटी बढ़ा लोगे, लेट्स से आपने इसका 2 बड़ा टेबल स्पून कंज्यूम कर लिया, then it is harmful for you. Okay, so you need to consume little quantity to have the benefits of it. It is not going to cause abortion to you. That is phase 2 you are asking. I understood, right? Second thing, हर चीज का एक क्वांटिटी डिसाइडेड है. ओके, आज सब लोग होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, राइट? आई से 1 ग्लोब्यूल, आई से 3 ग्लोब्यूल, आई से 10 ड्रॉप्स. उसका रीजन क्या है भाई? दवाई तो सब में डली हुई है. ऐसा भी तो कर सकते हैं पहले दिन ही दवाई आई, सारी की सारी शीशी खा गए, मीठी है, क्या ही फर्क पड़ेगा? नो 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 नो, इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी. डेली खाना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना है, उसका इफेक्ट होगा, राइट? अभी एक दिन बैठ के सारे मंत्रास कर लिए मैम के साथ, संडे को बैठ के, और पूरा मंडे से लेके सैटरडे तक कुछ नहीं, तो कोई फायदा होगा? आप मुझे बताओ. नहीं. सो कंसिस्टेंसी इज द की. अब मैं एक दिन बैठ के डिटॉक्स वाटर पी लूँ और बाकी दिन बैठ के मैं कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रही हूँ और अल्कोहल भी कंज्यूम कर लूँ किसी के साथ बैठ के, टेक टू मच ऑफ कॉफी एंड टी, विल इट गिव मी बेनिफिट? नो. कंसिस्टेंसी एंड क्वांटिटी मैटर्स. ठीक है? तो एक दिन में बैठ के सब कुछ नहीं करना है, एक बारी में बहुत सारा नहीं लेना है, थोड़ा 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 हर चीज मैटर करती है, राइट? आई थिंक ये सबको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट मेरा. करेक्ट. कुछ पेशेंट्स बोलते हैं मैम आपकी मेडिसिन में ना होम्योपैथिक मेडिसिन जैसी स्मेल नहीं आती है, वो फील नहीं आती है, वो जो हल्का सा अल्कोहल वाला स्मेल आता है. नो गाइज, आई एम गिविंग यू द लीस्ट रिक्वायर्ड मेडिसिन जिनको कम क्वांटिटी में लेने से ज़्यादा इफेक्ट होता है. होम्योपैथिक मेडिसिन को ज़रूरी नहीं है भर भर के लेने से ही इफेक्ट आए. होम्योपैथिक मेडिसिन 1 ड्रॉप इज मैजिकल, right? So this is the whole idea about what you are taking right now. हेलो मैम. Who's this? प्याली. हाँ प्याली, प्लीज. मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे हाँ. हम सुबह जो मंत्रास करते हैं और वो आपने जो विंटर एंड सीजन वाइज जो हमें समझाया, हाँ, वो हाँ. मंत्र किस टाइम पे करना है? सुबह कभी भी कर सकते हो आप. वो जो मैंने आपको अभी मंत्रास ऐड करे हैं ना, ये आप अपने रेगुलर मंत्रास में ऐड कर सकते हो. ये आप अपना फॉर एग्जांपल आपने लंच किया, उसके बाद आप रिलैक्स कर रहे हो, आप तब कर सकते हो. जो मैंने आपको मंत्रास फेजेस के हिसाब से बताए हैं वो आप तब कर सकते हो जब आप उस फेज़ को लेके किसी तरीके के स्ट्रेस में भी चल रहे हो. लाइक कि यार पीरियड्स आ गए, अभी ये स्ट्रेस है, तो मैं रेगुलर मंत्रा के साथ ऐसा क्या ऐड ऑन करूँ कि मेरे को उसका बेनिफिट डबल हो. तो आप ये फेज वाइज वाले मंत्रास भी उसमें ऐड कर सकते हो. ये वाले मंत्रास को मैं किसी भी रूटीन में फिक्स नहीं करती हूँ, ये आप कभी भी थ्रू आउट योर डे कर सकते हो. ओके मैम, थैंक यू. ओके, एनीवन एल्स? मैम जर्नी में हम लोग हो तो उस वक्त कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, आराम से आप अपना ईयरफोन्स लगाओ, सिट ऑन योर पोजीशन, मन ही मन में मंत्रास बोल सकते हो. यस, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. जरूरी नहीं है मंत्रास हमेशा लाउडली चैंट हो, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है. आप अपना पोजीशन भी बनाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते हो, सिंपली ऐसे बैठना चाहते हो, यू आर ट्रैवलिंग इन योर कार और यू आर ट्रैवलिंग इन द बस, प्लग इन कुछ नाइस म्यूजिक, रिलैक्सिंग म्यूजिक लगाया और अपने मन ही मन में अपने मंत्रास आप पढ़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. फीलिंग, इमोशंस और उसके साथ जो आप फील कर रहे हो ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन शोइंग इट टू द वर्ल्ड, राइट? अपने मन ही मन में कर सकते हो, बिल्कुल कोई इशू नहीं है. और एनी टाइम मैम? एनी टाइम. देखो मैंने एक रूटीन इसलिए फिक्स करा क्योंकि हम फीमेल्स के पास बाकी सब चीज़ें भी बहुत रूटीन में फिक्स होती हैं कि हमें सुबह ये करना है, हमें दोपहर ये करना है, हमें शाम ये करना है. तो वी आर ऑलरेडी फिक्स्ड इन आवर रूटीन, सो आई गेव यू अ रूटीन. सिमिलरली पीपल आस्क मी मैम होम्योपैथिक मेडिसिन आज सुबह की छूट गई, कब लूँ? सी आई हैव फिक्स्ड अ रूटीन कि आप मॉर्निंग इवनिंग नाइट में लूँ. बट अगर कभी भी छूट जाता है ना आपका, तो आप उसको इवनिंग आफ्टरनून में ले लो, फिर आफ्टरनून की उसके बाद ले लो, राइट? सो आप कर सकते हो जैसे आपको वो लग रहा है ना, कंफर्टेबल होकर आप कर सकते हो. Whenever मैम लीजर टाइम मिले तो हम कनेक्ट हो सकते हैं, आराम से इसको रिलैक्स होके कभी भी कर सकते हो. ओके, ठीक है. हाँ जी, एनीवन एल्स?
इससे पता चल रहा है आप लोग फॉलो तो कर रहे हो यार। हाँ हेलो मैम। हेलो हाय। हेलो मैम, मैं शिवानी। अरे हाँ शिवानी, हाय बताओ। मैम मैं ये कह रही थी कि आपने जो अभी बताया कि मतलब टेंशन पीरियड के टाइम पे अगर टेंशन है तो हम वो मंत्र करेंगे, लेकिन मतलब वैसे भी कभी कोई टेंशन है तब भी हम वो मंत्र कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप तभी ये मंत्र कर सकते हैं। मैंने उसके लिए आपको एक स्ट्रेस का मंत्र भी लास्ट टाइम दिया था, मैं लास्ट टाइम का सेशन दोबारा से डाल दूंगी, नहीं तो हैंड्स आउट्स आपके पास है। स्ट्रेस के टाइम पे मंत्रा इज़ वेरी सिंपल, ओम शांति 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 ओम। दिस इज़ अ सिंपल मंत्रा फॉर स्ट्रेस, ठीक है। ये आप कभी भी कर सकते हैं। आई हैव फ्यू पेशेंट्स जो कि दूसरे रिलीजन से हैं, उन्होंने मुझे उसके भी दिए हैं कुछ, लाइक बाइबल में से क्या बोलते हैं, कुरान में से क्या बोलते हैं। हर रिलीजन में काम डाउन होने का अपना एक मंत्रा है। हिंदू रिलीजन में काम डाउन होने का सबसे अच्छा मंत्रा है ओम शांति शांति शांति। अब आप इसको पूरा पाठ भी कर सकते हो, आप इसको इतना छोटा भी बोल सकते हो। वॉट एवर गिव्स यू रिलैक्सेशन इज गुड फॉर यू। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी, अभी तक के सारे स्टेप्स प्लीज अच्छे से फॉलो करो, इट्स गोना गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स। हेलो मैम। हेलो संगीता, हाँ बताओ। मैम बहुत बहुत थैंक यू आपको। ओहो अरे आई एम सो हैप्पी फॉर यू संगीता। बस अब अपना ध्यान रखना, मैं आपको कुछ टेस्ट बताऊंगी, वो भी कराना, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, बहुत काम डाउन रहो। मुझे वो डे 1 भी याद है तुम्हारा, मुझे वो 3rd मंथ के बाद वाली कॉल भी याद है। मैम कुछ होगा भी कि नहीं होगा? हाँ मैम, मुझे तो कुछ भी सही नहीं लग रहा है। मैम आपकी क्लास से बहुत फायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। आई नो, बहुत फर्क पड़ता है ना मुझे डेली मिलने में, हर हफ्ते एक बार ही मेरी शक्ल देखने में, है ना। मैम मंत्रास बहुत अच्छे हैं, बहुत फेस को लगता है, बहुत स्ट्रेस निकल जाता है। आई नो गाइज, मैं इसको जब मैंने खुद के लिए किया था, मतलब मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना, मैं बेबी प्लानिंग कर रही थी, बट ये बहुत सुकून देता है, बहुत अच्छा फील देता है। जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मतलब आई नो बहुत सारे लोग डिसहार्टेंड भी बैठे हैं, मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो जस्ट लाइक संगीता, आई थिंक हम सबके पास बहुत ब्यूटीफुल न्यूज़ आने वाली है वेरी वेरी सून, एंड आई एम देयर विद ऑल ऑफ यू इन दैट न्यूज़, ठीक है ना। मेरे को साथ में सेलिब्रेट करना है आपके, ऑल राइट। हेलो मैम। हाँ टोपी, हाँ लिपिका जी बताइए। मैम मुझे 2 महीने में 3 बार पीरियड आ गया। हाँ लिपिका जी, हाँ प्लीज प्लीज। मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मैं सोचती हूँ मुझे कुछ अच्छा खबर आएगा, लेकिन आ जाता है पीरियड। आई नो इस बार भी बहुत जल्दी आ गया। I know. 22 डेज में आ गया है। आई नो। ओके, सो लिपिका जी बेसिकली आपने जो बीच में वो मेडिकेशंस लिए थे, अगर आपको याद है, तो उसके बाद साइकिल सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आपका ओव्यूलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, सो डोंट वरी। देयर इज समवन एल्स सिटिंग विद अस जो कह रहा है मेरे को 6 महीने से पीरियड नहीं आया, आप कह रहे हो मेरे को जल्दी जल्दी आ रहा है। एवरीवन्स कंडीशन इज डिफरेंट, बट हम सबका एक ही गोल है, दैट इज प्रेगनेंसी। स्ट्रेस में मत आओ बस, ना ही दूसरों की बातों में आओ। देखो यार, ऑलरेडी आप सब लोग बहुत सुन चुके हो, ठीक है। कोई भी मेरे पास अगर बैठा है तो अपना सपोर्ट सिस्टम तो लेके बैठा नहीं है, ठीक है। वो आज भी सुन रहा है, वो पहले भी सुन चुका है। अपने आप को बस डीमोटिवेट मत होने दो। आपकी कंडीशंस बेटर हो रही हैं तो ये प्रेगनेंसी भी हो ही जाएगी। ऑल राइट गाइज, सो एवरीवन टेक केयर, बाय बाय, सी यू आफ्टर 2 Sundays एंड ऑन योर फॉलो-अप्स, ठीक है, बाय। टुडेज क्लास, आज की क्लास में शामिल होने के लिए दिल से धन्यवाद। रिमेंबर, एवरी स्मॉल स्टेप यू टेक इज ब्रिंगिंग यू क्लोजर टू योर बेबी। हर छोटी प्रैक्टिस, हर प्यारी सी फीलिंग आपके गर्भ को तैयार कर रही है। ट्रस्ट योर बॉडी, ट्रस्ट योर इमोशंस, ट्रस्ट दिस सेक्रेड जर्नी, और सबसे ज़रूरी अपने आप पे भरोसा रखो। If today's video touched your heart, don't forget to like, share and subscribe, ताकि ये healing journey और भी लोगों तक पहुंच सके। See you next week with more mantras, more warmth और एक नई healing story. Till then, keep glowing, keep preparing, and your body and your baby is already listening. Namaste and lots of love from Team Nari Arogya.